Okay. I have about 20 slides to discuss. Can you just recall where we stopped? We completed accuracy and precision, I suppose. Isn't it? Precision was done, if you remember. તમને ખ્યાલ છે ક્યાં સુધી ચાલ્યું હતું? Yes. Sensitivity and selectivity. Last point. Last point. Okay. Good. Okay. ठीक है, sensitivity and selectivity સુધી આપણે કર્યું હતું. Okay. Now the next thing is linearity. See, we always need to plot a calibration curve for any quantitative measurements. Yes. We did this linearity. Acha, linearity was done. I had talked about calibration curve and the range in which we need to set a calibration line. That is what linearity is, and we are expected to have a coefficient of determination value close to 1. This is what I suppose then I discussed at that time. That is what is. So if we had done linearity, then I think I suppose accuracy. Yes. Sir, can you quickly repeat linearity? Okay, good. See, in linearity, what we do is, see, when we are measuring any unknown sample, we are not very sure about the expected concentration level. Therefore, we need to have some guidance for linearity or for the calibration curve for it to be linear. Now the calibration curve which we prepare with different concentrations should be such that it is 1.5 times above the expected concentration in the real sample and 0.5 times lower than the expected sample. That means आपको जो linear range बनानी है वो करीब ऐसी होनी चाहिए कि if for example the analyte is close to 1 ppm, I'm just taking this unit arbitrarily, 1 ppm, then 1.5 times means 1.5 ppm would be the upper limit and 0.5 would be the lower limit. So, and within this range, we can have several standard solutions which we can prepare and then draw a calibration line. At least there should be 5 such standard samples within this line. So if your line is from 0.5 to 1.5 ppm, then we can have the following points: 0.5, 0.7, then possibly 0.9, then maybe 1.2, and then 1.5. So we have 5 points through which we will plot a calibration line. When we expect the unknown substance to be around 1, that is how. But see, this is a simple guidance. But beyond this, for practical purpose, we can always increase this linear range, the concentration range. If you look at the current range, it is 0.5 to 1.5 times, so it would be around 3 times. 1.5 divided by 0.5 would be 3, so it is 3 times only. But you can prepare a calibration line which is, see, 10 times, 50 times, 100 times, 500 times, and even 1000.
times. So that means you can have a range starting from say 0.5 to 500 as well. So when you divide 500 by 0.5, it would be 1000 times. So that is also possible, and that is done. Actually, that is done, but it all depends upon the concentration range in which we expect the real samples to fall. देखो कोई एक सैंपल तो मेजर करता नहीं, यहाँ पे सैंपल जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सैंपल्स होंगे, उसके लिए एक लीनियरिटी बनानी है, अदरवाइज जितने सैंपल्स होंगे उतने की लीनियरिटी बनेगी. सो दिस विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव अफेयर. So generally linearity is prepared in such a way that it can include lot many samples of varying concentration. यही चीज है linearity का essence. The only thing is the response, the R square value जो होती है, जो coefficient of determination है, that should be 0.99 or greater. मतलब 0.992, 3, 4 ऐसे आगे. It should be, if it is 0.8, then there is only 80% correlation between the two variables. So for real samples, for analytes present in real samples, it is expected that one should have coefficient of determination, that is R square, to be greater than or equal to 0.99. This is a very standard guideline worldwide. For impurities, if you want to find out impurities in that sample, for example, then for that it is expected that the linearity should be at least greater or equal to 0.98. That is how things move under linearity. So that was all about calibration line or linearity, which we prepare for any quantitative analysis. When we go to see accuracy and precision, we have already studied about accuracy and precision, but accuracy, of course, when we think about accuracy, we always think of correctness or trueness of our results, trueness or nearness to the true value, and that would give us an estimate of accuracy. For that, one can analyze a standard reference material, जिसका concentration we know. This is a general process. This is a standard process of finding out the accuracy for any analyte in any given sample. But as you know that it is not possible always to have a standard reference material for each and every sample available. So in those cases, it becomes difficult to have a reference material and a reference value. So what you do generally is you work with two different analytical methods for the same sample and see whether you are getting the same readings or not, whether you are getting the same accuracy or not. So that is how things move in real life. You start working with different methods, you start working with different instruments of different make, and still if you get the same results, then you say that you are accurate. Or you may ask somebody else to do that same experiment, what you have done in your lab, in your conditions, with your chemicals, with your instrument. And if he or she also gets the same reading or the same results, then we can give an estimate of accuracy. And for that, and if we are unable to do that as well, or if you don't want to do that, then there is another way of doing it is you take a known amount of sample, take a known amount of that same sample and see for yourself whether that under the same conditions you get that or not. If you get that using spiked samples, spiked samples का मतलब यही होता है कि आप खुद उस solution को आप खुद बनाते हो, लैब में बनाते हो, मतलब आप मैट्रिक्स वही लेते हो जो रियल सैंपल की होती है, मतलब जो उसके अंदर होता है उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, जिसको हम लैब में बनाते हैं और जिसको हम सिमुलेटेड सैंपल्स कहते हैं. उसके अंदर हम नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डाल देते हैं. इसको प्रोसेस को कहते हैं स्पाइकिंग. तो हम स्पाइक करके भी हम वही मेथड फॉलो करते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट फॉलो करते हैं, वही रिएजेंट्स यूज करते हैं.
and then we come out with a result, and then we compare it with whatever method we have been using. And this also gives us a measure of accuracy. So these are different ways and means, because there is no one such fixed or rigid method or a technique through which we can ascertain the accuracy of our method. One needs to keep on constantly changing, innovating to come out with an accurate value and the presumed accurate value, which of course once you get that, you apply statistics to it, you write standard deviation values, etc., etc. So it is expected that accuracy should be within 100%, but 100% is the maximum. So it is expected that it should fall between 100 plus minus 2, that is 98 to 102. It cannot be more than 100% always, but then there are other practical errors which might creep in, because it depends upon the person concerned, it depends upon the instrument, it depends upon several other factors, and therefore the limits which are given to prove accuracy is 98 to 102% for general purpose. But this again range keeps on changing. This range depends upon the levels which we analyze. If we are analyzing in say milligrams or gram quantities, then of course this would be applicable 100 plus minus 2. But if we are working at say nanogram levels or microgram levels with very low levels of concentration, then this range keeps on increasing. It could be plus minus 5%. In some of the cases, you will find this to be plus minus 15%. So it all depends upon the levels at which we work. जितने level concentration level पे हम work करते हैं, ये जो range है, it keeps on increasing. This range keeps on increasing. But for your purpose, for your understanding at your level, I think this is sufficient, because there are so many things attached to accuracy, which you will come to know actually when you maybe complete your MSc and do some research, etc. So then you will be aware of the other criterias which are also there for accuracy. But this much is enough for your understanding as of now. Precision, again, precision is something which we know, which is the degree of reproducibility which we attain with our results, and that is again expressed in number of ways, because we need to prove these are validation parameters, so we need to prove it in maximum number of ways possible, which has been given by some organizations through their guidelines, that if you want to prove precision when you are working with a particular kind of a sample, you need to do this, you need to prove this. That is what is how we work, how people work in analytical sciences. So there is one such precision which is measured, that is known as instrument precision or injection reproducibility, because when you see, you can prepare your sample, you can take a real sample, then do some sample processing, which this process is known as sample preparation, and fine, you have done to the best of your ability, to the best of everything possible. But when you go to inject in your instrument, one has to prove injection reproducibility as well. That is also becomes very important, because if we don't inject the same amount every time, then also that the precision might change. So that is also which is need to be proved when we work with precision. The other common ways of ascertaining the precision of our study is through two ways, that is intra-assay precision and inter-assay precision, which are also called as intra-batch precision or inter-batch precision. And the third way in which it is expressed is intraday precision and interday precision. These are the different terms which you will find in different guidance. I have written only one here, intra-assay precision, but
all intra-essay or intra-day or intra-batch precision are convey the same meaning, but they refer to different ways in which we carry out our precision experiments. So in intra-essay, what exactly people do is this: you have a sample, you prepare different aliquots of that same sample. That means you prepare replicate samples, you analyze replicate samples from that same sample and see by the same person. I mean, the same person would be doing this and he would be analyzing all the samples on the same day and with the same equipment. So if one follows this, same person, same day, same equipment, several replicates, number of samples if you analyze, and you prove the precision, then you call it intra-essay or intra-day or intra-batch precision. And then when you go for a higher degree of precision or inter precision, inter-batch, then inter-day, the process remains the same, but you do this exercise over a period of 3 to 4 days or 3, 4, 5, 6 days. The same exercise you do every day. So it is giving you a measure of precision based on number of days which you do, because what happens is you cannot do everything in a day. Of course, you need to do something today, then something tomorrow and day after tomorrow. So you need to prove that precision as well. That is what is inter, I-N-T-E-R, inter-day, inter-batch or intra or inter essay. So these are the precision values, precision experiments which one carries out to prove the precision. And then there is another higher order of precision, and that is known as inter-laboratory precision. Inter-laboratory precision. Now this is a higher order of precision value. That means whatever you have done in your lab with your equipment, with your chemicals, everything, whatever you have done, can that be replicated in a different lab, at a different place, at a different time, by a different person, obviously with a different instrument? If there is a correlation, a good correlation between the results in your lab and in some other lab at some distance, maybe in the same city or outside the city or even different country, then you say that you have achieved inter-laboratory precision. So that is the whole essence of the measurement of measurement of precision as far as validation of a particular method is concerned. So these are, I mean, different ways and means to prove the precision. And as I said from the very beginning, that precision plays a major role. Precision plays a major role in validation for real samples. For known samples, I think accuracy and precision would work equally. But for unknown samples, for real samples, precision takes, is much above rather than accuracy. Accuracy comes afterwards. First of all, we need to prove the precision of the method, right? Then comes the range. So range is something which covers everything rather. Range is the concentration interval over which linearity, accuracy, and precision are all acceptable. That is the range. जो हम concentration range establish करते हैं, concentration range जो हम establish करते हैं, it is the same thing. It is that linear range, but will include the accuracy and the desired accuracy and precision. So it is same as linearity, same as what we try to prove with accuracy and precision, but all inclusive would give us the range. We can always say that this is my range where I can get accuracy and precision, and same acceptance criteria.
for coefficient of determination or correlation coefficient. See, there is only one difference in correlation coefficient and coefficient of determination. The square of correlation coefficient is coefficient of determination. That's the only thing. So based on range, we have three such terms: linear range, dynamic range, and the simple range which we just understood. Linear range means the response is, of course, linear over the entire calibration range which we have established. Dynamic range means concentration range over which there is measurable response. When we say measurable response, because what happens is, again this is with respect to concentration. देखो क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं और हायर कंसंट्रेशन लेवल पे काम करते हैं तो हमें क्या होता है, रिस्पॉन्स मोर और लेस कंसिस्टेंट मिलता है, मोर और लेस रिप्रोड्यूसिबल मिलता है. चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन आर मिनिमाइज्ड. बट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद दैट सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम मेथड, सब कुछ सेम, person same, instrument same, condition same, but when we start to work at lower concentrations, जैसे हम माइक्रोग्राम और नैनोग्राम में जाते हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो रैंडम एरर्स होते हैं, वो ज्यादा दिखने लगते हैं. तो जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, that is not that consistent what we get in a linear range, concentration range. So dynamic range adds something more to the linear range, that which where there is a measurable response. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब लोअर कंसंट्रेशन काम कर रहे हैं तो जो सिग्नल जो आता है, मतलब अरे जो नॉइज आती है, जो नॉइज होती है, जो इंस्ट्रूमेंटल नॉइज होती है, जो रैंडम एरर्स होता है, उसका कंट्रीब्यूशन से consistency in reproducibility is compromised. So we need to, when we say that we have established a dynamic linear range, that means now this range is devoid of any such noise which might occur during measurement, and whatever response we get is now highly reproducible, whatever. So that assessment is known as a dynamic range. Now this is one of the most important aspect to prove one thing, and secondly to understand. For any method, I'll tell you, for any method that you establish, whether new one or a modified one, you need to prove two things. For quantitative analysis, you need to prove two things for quantitative analysis, and those are limit of detection and limit of quantitation, without which no known instrument in this universe can give you quantitative measurements. So for quantitative measurements, one needs to prove, very essential point, we need to prove limit of detection of our method and limit of quantitation of our method. Limit of detection means you can detect something, but you cannot quantify. आपको दिखता है कि हाँ कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि इतना रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन है. ये चीज जब आप नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन. और लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन को हम क्या कहते हैं कि वो हमको दिखता भी है और हम ये भी जान सकते हैं कि वो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन. और अदर लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, जो सबसे कम चीज हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको हम लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन भी कहते हैं या लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन भी कहते हैं. So there is a very clear cut difference between
लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट्स ऑफ क्वांटिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। And how do we understand this? Through statistics. That is what my intention is, and this is how we understand. See, through this figure. This is a very classical figure through which one can understand what is limit of detection and what is limit of quantitation. Now, by now you know what is a normal Gaussian curve. A normal Gaussian curve signifies spread of values across a mean where the spread of the values at the base is 3 sigmas on the left and 3 sigmas on the right. That means base के नीचे 6 standard deviations होते हैं। कहां से कहां तक? यहां से लो ये पीक को यहां तक, it is 6 standard deviations। 6 standard deviations के अंदर, इसके अंदर 99.5% of the values one can find except 0.5। 0.5% हमको वैल्यूज इसमें नहीं मिल पाती है, मतलब इस रेंज में नहीं गिरती है, नहीं आती है। और ये एक ऐसा फिगर है, एक सिमेट्रिक फिगर है, जिसके सेंटर पे हम कहते हैं मीन है, ये इसको मीन कहते हैं। अब हमको ये पता है कि डिटेक्शन मतलब कि वो दिखता है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि जो डिटेक्शन है वो डेफिनेटली ब्लैंक से कुछ अलग है, ब्लैंक सैंपल से कुछ अलग है। ब्लैंक मतलब कि जिसमें एनालाइट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या, जब भी कोई ब्लैंक डालते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, हम ब्लैंक सैंपल डालते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रीडिंग न मिले या जीरो मिले। जब जीरो मिलती है हम खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ इसमें एनालाइट नहीं था, ब्लैंक था, इसलिए जीरो मिल गया। दैट ब्लैंक रीडिंग के रिस्पेक्ट पे ही सब कुछ डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। तो ये फिगर में आप देखो, दिस इज द मीन ऑफ द ब्लैंक। मतलब आपने ब्लैंक के 6 सैंपल लिए, ब्लैंक के 6 सैंपल लिए और उसको आपने उसका मेजरमेंट लिया। ये जरूरी होता नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जीरो ही आए, ऐसा भी हो सकता है 0.01, 0.015 या 0. कुछ भी आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 0.18 भी आ सकता है, कुछ भी रीडिंग आती है। तो अगर हमने 6-7 रीडिंग ले ली, उसका हमने मीन निकाला तो हमें एक मीन मिल जाएगा, ये रहा मीन, और बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। तो ये है कि लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और इसमें क्या फर्क है? दिस इज ब्लैंक, दिस इज फॉर योर केस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज जीरो। इट इज नॉट जीरो एग्जैक्टली, बट इट इज सम वैल्यू which is due to something which is present in blank, but not the analyte of interest. So what is the limit of detection? Limit of detection is the intensity of the blank, the mean intensity of the blank plus 3 standard deviations. मतलब अगर इसके अंदर मैं 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मिला दूं, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मैं इसमें मिला देता हूं, मतलब यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक ये 3 स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो इसमें अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डिवीजन मिलाता हूं इधर, तो मुझे एक और कुछ वैल्यू मिलेगी, ये इससे ज्यादा होगी, ये सैंपल की होगी। मतलब ब्लैंक प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस अगर वो सिग्नल में लेता हूं, सो दैट सिग्नल corresponds to that analyte sample which can be detected only. ये इसका क्राइटेरिया है। स्टैटिस्टिक्स में लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज 3 times blank intensity plus 3 times the standard deviation. Whatever is the signal, that signal corresponds to the sample, and at which the sample can only be detected, but it cannot be quantified. That is the whole essence of limit of detection, and limit of quantitation is 10 standard deviations. मतलब
ये 3 हुआ, इसके बाद एक और 3 होगा, इसके बाद एक और 3 होगा और फिर 1 होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी स्टैंडर्ड हो रहा है, जो भी सिग्नल मिल रहा है, यहां कुछ मिला, नेचुरली इससे ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे देखना, ऐसे देखना, इस तरीके से देखो। अगर ये 0.2 है तो डेफिनेटली दिस विल बी 0.4 और 5 समथिंग। देन लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन वुड बी हियर मे बी 1.5 समथिंग, इतना दूर के बाद 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वी विल से दिस सिग्नल corresponds to whatever may be the analyte concentration, that also we can find out. ये वाले को हम कहेंगे लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और वहां पे जो आएगा दूर पे 10 स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब यहां से लेके 10 स्टैंडर्ड डिवीजन, somewhere here, that is known as limit of quantitation, and that is what is expressed here. जो भी मैंने आपको समझाया वो ऐसे समझाया, देख लो। मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल जिसको हम YDL कहते हैं, जो कि हम लिमिट ऑफ डिटेक्शन बता रहे हैं, इज Y blank प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। अगर हम इसके यहां लिख दें 10 स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिस बन जाएगा लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। ये बन जाएगी लिमिट ऑफ डिटेक्शन है अभी, और बाद में ये बन जाएगी लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। अगर हम यहां पे 10 लिख दें तो ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस, एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। एंड टू फाइंड आउट द concentration, to find out the concentration at that signal, we use this expression. What we need to know? We need to know Y blank, we need to know Y sample, जो हमको मिलता है, जो हमको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे मिलता है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। M is the slope of the calibration line, and then we can find out the concentration. So concentration corresponding to the limit of detection can be also found out, and the limit of quantitation can also be found out. Detection and quantitation. और इसीलिए एक इसमें न्यूमेरिकल है, हाँ देखो ये रहा, मिनिमम डिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन इज 3 sigma by M, that is limit of detection, and 10 sigmas by M, that is limit of quantitation. That means it signifies the amount. हमें उसमें कितना मिलेगा. What we need to know is standard deviation multiplied by 10 divided by the slope of that equation. So that is how generally we find out the limit of detection of our method, and likewise the limit of quantitation of our method. Now this is a very simple example which will make things very clear. And what does this say? This says that हमने कोई सैंपल लिया, सिग्नल्स फ्रॉम 7 रेप्लिकेट सैंपल, रेप्लिकेट सैंपल्स मतलब एक ही चीज के 7 बना दिए छोटे छोटे एलिकॉट लेके, सिग्नल्स फ्रॉम 7 रेप्लिकेट्स with a concentration about 3 times the detection limit were ये थे 5, 5.2, 4.2 ये आ गए। देखो जब लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तब देखो सिग्नल्स कितने वेरी होते हैं, एक हमको 6 भी मिलता है और एक हमको 4.2 भी मिलता है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना ये हिल जाती है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो देयर इज नॉट a very high degree of consistency or reproducibility in our measurements, and the corresponding blanks for these samples, for these replicates, is 1.4, 2.2, 1.7, 0.9, 0.4, 1.5 and 0.7. तो नेचुरल हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये तो ब्लैंक है। ओके, द स्लोप ऑफ द कैलिब्रेशन लाइन फॉर द हायर कॉन्सेंट्रेशन इज स्लोप इज दिस मच। अब हमसे ये पूछ रहे हैं फाइंड द सिग्नल डिटेक्शन लिमिट एंड मिनिमम डिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन। हमसे उन्होंने ये चीज बोला है, सिग्नल पूछा है, फाइंड द सिग्नल डिटेक्शन लिमिट, सिग्नल की डिटेक्शन लिमिट क्या है और उस पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये दो चीज हमसे पहले सवाल में पूछी है। बी पार्ट में बाद में टैकल करता हूं, पहले ए पार्ट। अब देखो इसका सोल्यूशन।
सबसे पहले हमको ब्लैंक्स की वैल्यू दी थी 5, उसका एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, तो y ब्लैंक आ गया। उसी का हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल गया। ठीक है, अब सिग्नल डिटेक्शन लिमिट, सिग्नल डिटेक्शन लिमिट हम जानते हैं 3 टाइम्स, तो ये YDL इज इक्वल टू Y ब्लैंक, सो ये रहा ब्लैंक, ये यहाँ आ जाएगा 3 into S, S is this, so it becomes this and it comes out to be, तो ये सिग्नल मिलेगा हमको डिटेक्शन पे, डिटेक्शन जैसे हम डिटेक्शन लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब उस पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, इस पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा at detection limit, that is 3 into S divided by slope। तो ये क्या हुआ 3 into 0.5, 0.5 क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये रहा स्टैंडर्ड डिवीजन, ये यहाँ लिख दिया। मास m क्या है स्लोप, स्लोप हमको दिया है 0.229, वो यहाँ लिख दिया। तो कितना आया, मतलब इस सिग्नल पे ये कॉन्सेंट्रेशन होगा। देखो माइक्रोमोलर में आ गया, हम बात करते हैं मोलर में या मिली मोलर में, ये माइक्रोमोलर में आ गया। मतलब माइक्रोमोलर और मिली और मोलर में कितना फर्क है, 10⁶ का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है। सो हमको ये पता चल गया। अब सेकेंड पार्ट ये था कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन अ सैंपल दैट गिव अ सिग्नल ऑफ, अगर सिग्नल इतना आता तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता, क्योंकि हम तो हमेशा सिग्नल मेजर करते हैं। तो उसको देखें। अब देखो, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल हुज ओरिजिनल हुज सिग्नल इज 7 नैनो एम्पियर्स, देन ये जो हमने इक्वेशन देखी थी y सैंपल माइनस y ब्लैंक, तो हमारे पास ये तो है, सैंपल क्या है 7, जो सिग्नल हमारा आया वो, ब्लैंक क्या है ये हमने निकाला यहाँ पे, ये 1.2, m क्या है स्लोप, स्लोप तो हमने यहाँ यूज किया, सो यू राइट द स्लोप, व्हाट यू गेट इज दिस। दैट मीन्स अगर 7 नैनो एम्पियर आता है सिग्नल, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 25 माइक्रोमोलर्स। ये चीज समझ में आ गई, जिसकी डिटेक्शन लिमिट थी 7 माइक्रोमोलर्स, और 7 माइक्रोमोलर्स की कितनी थी इंटेंसिटी, 2.9 एम्पियर्स, नैनो एम्पियर्स। तो ये चीज समझ में आ गई। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, okay, good. So that was all about limit of detection and limit of quantitation. See, there is so much more to tell you in limit of detection and limit of quantitation, but I am restricting myself to the things, to the aspects which you are expected to know at this level. As you move ahead, there will be many changes in this. It all depends upon, as I said, on concentration levels. Then I think this is the last validation parameters for you, that is robustness. Now what is robustness? This is a term which tells us how robust our method is by deliberately changing small parameters. You make small changes in the parameters, but deliberate changes, but small changes. If you make in your method conditions, फिर भी आपका रिजल्ट वही आता है, तो हम कहते हैं मेथड रोबस्ट है। मतलब जैसे जब आप कोई कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, तब आप उसमें ऐसे लिखते हो, टेक 10 ml this, then add 5 ml of acid, then add 5 ml of reagent, you will get a color, make it to volume and measure। अब इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, हमने 10 ml सैंपल लिया, 5 ml एसिड डाला, और 5 ml रिएजेंट की जगह हमने 4.5 ml डाला, और हमने रीडिंग ली, क्या सेम आती है? अगर आती है तो हम ये कह सकते हैं मेरा मेथड रोबस्ट है। ऑप्टिमाइज कंडीशन से भी अगर हम थोड़ा प्लस माइनस करते हैं तो भी सेम रीडिंग मिलती है।
या फिर जब आप ये मिक्स करते हो 10 ml ये और 5 ml एसिड एंड 5 ml रिएजेंट, और फिर आपको कहा जाता है टेक रीडिंग्स आफ्टर 10 मिनट्स सो दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट एंड यू गेट कंप्लीट कलर, फुल कंप्लीट कलर, दैट द रिएक्शन शुड टेक प्लेस कंप्लीटली। तो आप 10 मिनट तक रुकते हो। अगर आप 10 मिनट की जगह 8 मिनट ही रुको और फिर भी वही रीडिंग आती है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने 8 से 10 मिनट तक रुका तो वो ही रीडिंग आएगी। सो अवर मेथड बिकम्स मोर एंड मोर रोबस्ट। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर जगह हर समय जो कंडीशंस आपने सेट की हैं अपने मेथड के लिए, वो शायद कहीं पे लागू न भी हो, पॉसिबल न भी हो। सो यू नीड टू प्रूव मेथड रोबस्टनेस। जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तब हम उसमें मोबाइल फेस का कंपोजिशन कुछ चेंज कर सकते हैं बाय 2%। हम जो कॉलम जो यूज करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम यूज करते हैं और वो कॉलम हमेशा एक इट इज थर्मोस्टेटेड, उसका एक कॉलम ओवन होता है जिसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो अगर उसका हम कुछ टेम्परेचर चेंज करें, प्लस माइनस करें, और फिर भी वही सेपरेशन मिलता है, तो हम कहेंगे हमारा मेथड रोबस्ट है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग is being told to you or you understand from robustness study, and this is again needs to be proved for any method. Acha, so validation part we are done with, and now the last part, that is the remaining part of which is more of a general kind of a thing rather than it is just for your information. This is just for your information. There is so much more attached to good laboratory practices, but since this is an introductory addition in your syllabus, I'll be confining myself to only those aspects which are important to you as of now. It is a very detailed kind of a thing. You will find books on good laboratory practices, but we are not concerned about those aspects because those are very, very specific aspects. We'll be only talking about some general aspects. What is what are good laboratory practices and why they were introduced, and what is their importance? Those things I'll be just telling you, and what are the ingredients of good laboratory practices. देखो ऐसा हुआ कि सब लोग अपने वहां पे अपने लैब में काम करते हैं हम लोग, लेकिन सब जनों की कंडीशंस अलग होती है। लेकिन जब हम कोई रिजल्ट देते हैं तब हम कहते हैं हमने इससे किया, ये मेथड किया, वो मेथड किया, हमने अपने हिसाब से कह लिया, लेकिन सब लोग, किसी ने देखा तो नहीं कि हमने ऐसे किया था। तो होता ये है कि ये बात शुरुआत हुई थी एसेंशियली विथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। मतलब नो अदर वर्क, no other lab or no other instrument or organization is as regulated as the pharma industry. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो कि इससे ज्यादा रेगुलेटेड है, मतलब जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में काम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो नेचुरली, और everything depends upon life, मतलब life is dependent upon the drugs. So when you work in such labs, there has to be a certain norm which needs to be followed by everyone. Whosoever does this has to follow something, because long back it was found that the data obtained from different labs was not matching, and there was some cases which were not reliable. The data was not reliable. There was something happening which prompted the regulatory agencies to come up with a practice which is followed by everyone, so that whatever comes out becomes reliable, it becomes trustworthy,
it becomes safe to accept it anywhere in any part of the world. तो वो कंडीशंस को, वो प्रैक्टिसेस को हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कहते हैं. और ये आप सब तो काफी साल हो गए, मतलब इट इज मोर देन अराउंड 40 years, 40-50 years ऑलमोस्ट के ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में सोचा गया और अब उसको रिगरसली इम्प्लीमेंट किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में. अब इसके अंदर होता क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर होता क्या है? इट्स बेसिकली अ क्वालिटी सिस्टम. मतलब एक इंश्योर करता है, क्वालिटी इंश्योर करता है किसी भी प्रोसेस की. A quality system concerned with the organizational process. मतलब GLP ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि लैब में आपको अच्छे से काम करना है, एक तरीके से काम करना है. आपके ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट ऑफ गाइडलाइंस के अंदर काम करना है. मतलब इसमें इंसान भी आ जाता है, लैब भी आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है, केमिकल्स भी आ जाती है, प्रोसेस जो करते हैं वो भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है इंसान के साथ. एम यही है कि जो भी कुछ चीज वहां से आए वो रिलायबल हो, वो ट्रस्टवर्दी हो. एंड द कंडीशंस अंडर विच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज आर, जो भी काम करो वो प्लान्ड हो, परफॉर्म्ड, मॉनिटर्ड, रिकॉर्डेड, आर्काइव्ड एंड रिपोर्टेड. मतलब रिपोर्ट करने से पहले कोई भी काम वो मॉनिटर्ड भी हो जाए, उसको मॉनिटरिंग भी की जाए, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए और उसको आर्काइव भी कर लिया जाए. आर्काइव मतलब जब हम उसका पूरा स्टडी को, पूरी एक्टिविटीज को हम डिजिटल फॉर्म में लेके रख देते हैं, उसको आर्काइव कर देते हैं, सो दैट इट कैन बी रिट्रीव्ड एनी टाइम. आज नहीं, 2 साल 3 साल बाद भी तो हमें पता रहेगा कि हमने किस तरीके से ये प्रोसेस किया था. बिकॉज पीपल कीप ऑन चेंजिंग इन इंडस्ट्रीज, सो देयर हैज टू बी एन आर्काइव कि 2015 में इसको ऐसे किया था, तो आज वो होता है या नहीं होता है, और वो कैसे किया था और अब क्या चेंजेस आ गए हैं. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. The only thing behind the reasoning behind this is that one should have quality data. The quality of the data should not be compromised under any conditions. So everybody who wishes to have a GLP compliance system has to follow its guidelines. जो भी चाहता है कि हमको GLP का एक नॉर्म मिल जाए, एक लेबल मिल जाए, सो हमको उन्हीं के तरीके से, उसी तरीके से काम भी करना पड़ता है. एवरीवन, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज GLP इज ऑल अबाउट. एंड मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एज आई सेड, पर्सनल्स. मतलब उसमें ये भी पता रहेगा कि ये पर्सन की क्या रोल्स या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंसान की भी, कि इसको क्या क्या काम करना है, ये काम ये कर सकता है, ये काम ये नहीं कर सकता. ये भी चीज उसमें डिफाइन होती है. यहां तक डिफाइन होती है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको मुझे कैलिब्रेट करना है, तो कैसे कैलिब्रेट किया जाएगा, उसका एक प्रोसेस होगा, वो पॉइंट वाइज लिखा जाएगा, जिसको हम SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ऐसे जैसे हम बैलेंस यूज कर रहे हैं, हम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ले रहे हैं, हम कोई और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, सबको चलाने की, मेंटेन करने की, मॉनिटरिंग की, रिजल्ट की एक SOP रहती है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. वो हर चीज की डिफाइन होती है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि इस साल, इस दिन, इस महीने के इस दिन, इतने बजे ये प्रॉब्लम हुआ था, उसको ऐसे रेक्टिफाई कर दिया, उसको हमने किसी तरीके से रेक्टिफाई कर दिया, ओवरकम कर दिया. वो भी चीज का रिकॉर्डिंग होती है. रिकॉर्डिंग मीन्स नॉट रिकॉर्डिंग इन कैमरा, but then recording in paper. Okay, everything is, there should be a documentary proof of whatever activities are being done in a particular roof, under a roof, in a lab, in an organization. So everything is well defined. Even for example, a simple thing like
where to keep an instrument in a lab which has maybe 2 doors and 5 windows. So where that instrument needs to be placed, उसकी भी एक एक क्राइटेरिया होते हैं कि उसको हम कहाँ रखेंगे, where it will function best, where it will have minimum interference. कोई चीज ऐसी होती है जिसपे लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो उसको where we are supposed to keep it, how we are supposed to work. तो उसके भी अंदर मतलब everything is documented for that as well. So that these are the things which are included in GLP. अब स्टडीज किन किन को GLP अप्लाई करता है, कौन से ऐसे स्टडीज हैं जहां पे हम GLP कंप्लायंस ले सकते हैं, जहां पे हमें लेना चाहिए, जहां पे फूड स्टडीज होती है, कलर एडिटिव्स, एनिमल एडिटिव्स, जहां पे कोई ऐसी चीजें होती हैं जो भी चीज खाने से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड है, ड्रग्स, ऑफ कोर्स ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसका भी हमें एक GLP मतलब फॉलो करना होता है. GLP मतलब यहाँ पे लिया जा सकता है, तो हम बता सकते हैं कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाया इट वाज प्रिपेयर्ड अंडर GLP एनवायरनमेंट. इन विवो स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज, स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिसिटी स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फार्मा इंडस्ट्री में, ड्रग डिस्कवरी में. टॉक्सिसिटी स्टडीज, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, everything concerning human life or life of an animal, जहां पे GLP compliance is now mandatory, जरूरी हो गया. कहां अप्लाई होता है? टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, इंसान पे भी होता है. क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, जितनी भी हमारे एक कंपनी में फैसिलिटीज है उस पे, apparatus, materials, reagents, any kind of samples, even reporting of results, इवन स्टोरेज, कैसे स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से उसकी लेबलिंग कर रहे हो. जैसे आपने कोई सॉल्यूशन आज बनाया तो किसने बनाया, आज फॉर एग्जांपल दीप ने बनाया या किसी ने बनाया या जय किशन ने बनाया, कितने बजे बनाया, इतने बजे बनाया, इस दिन बनाया और इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था और उनका सिग्नेचर. आपको ये भी चीज मेंशन करनी होगी. Because you may not be there today, tomorrow, somebody else might be there. So he should be in a position to carry forward or understand what was done earlier. So इतनी छोटी छोटी चीज भी good laboratory practices में आती है और सबकी SOP बनती है, standard operating procedure, कि उसको एक टेक्निकल रिपोर्ट बन जाती है हर एक चीज की कि इसको ऐसे फॉलो करना है, इस प्रैक्टिकल को ऐसे करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ऑपरेट करना है, जैसा हम चाहते हैं ऐसे नहीं. उसका एक प्रोसेस होता है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है. तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एनीथिंग, प्रैक्टिकली एनीथिंग. अब कहाँ SOP होती है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है वही चीजों में. इवन अगर आपके पास कोई सैंपल आता है बाहर से उस लैब के अंदर, तो आपने उसको लिया कैसे, ऐसे ही ले लिया, उसने हाथ से दिया, आपने उसको हाथ से ले लिया ना, वो किस फॉर्म में था, उसको किस में रखा हुआ था, उसमें कुछ उसका उस समय का स्टेटस क्या था. बिकॉज जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, वो जरूरी नहीं आप उसी दिन एनालिसिस करो, उसके एक हफ्ते बाद करते हो, तो द प्रॉपर्टीज शुड नॉट चेंज. तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं, लेने की जो कंडीशंस होती हैं, स्टोरेज की जो कंडीशंस होती हैं, हैंडलिंग की जो कंडीशंस होती हैं, उसका भी एक SOP होता है. और जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि आप लाए तो उसका भी प्रूफ, हमने लिया उसका भी प्रूफ, ये प्रूफ भी होना चाहिए. ठीक है. सो SOP अप्लाइज टू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, डेटा कलेक्शन, हैंडलिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल. रख तो दिया, फिर कब निकाला, रिट्रीव कब किया, वो कैसे फॉर्म में था, रिपोर्ट राइटिंग, एसेट्रा एसेट्रा. एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, दीज आर सम representative examples only, nothing more, just representative examples for you to understand. Calibration किसका, dissolution apparatus, muffle furnace, वर्नियर कैलिपर, ये आपने यूज किया होगा BSc में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में. फिर ऑपरेशन ऑफ UV विजिबल, देयर आर मेनी, कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ HPLC, ऑपरेशन ऑफ HPLC,
कैलिब्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस, सबका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज का चलाने का, ऑपरेशन का एक तरीका होता है, उस तरीकों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद आप देखते हो हर डिपार्टमेंट में दो चीजें होती हैं जहाँ पे आप, जैसे आप एमएससी हो जाओगे तो आप कहोगे मुझे क्यूसी में जाना है या क्यूए में जाना है या एडीएल में जाना है या आरएनडी में जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्वालिटी एश्योरेंस जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीएलपी है, बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीएलपी है। बिकॉज क्वालिटी एश्योरेंस इज कि जो भी काम हो रहा है उसका हम एश्योरेंस ले रहे हैं कि वो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होती है। कोई जना होता है जो काम करता है और कोई जना ये इंश्योर करता है कि वो काम ऐसे हो, कुछ गलत ना हो, रूल्स फॉलो हो। और एक चीज होती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज अ वेरी स्मॉल थिंग इन अ बिगर सेटअप। क्वालिटी कंट्रोल is only dependent on मतलब that you follow a protocol, do it mechanically using that particular protocol and get the results. So you are not concerned about क्या रिजल्ट आया, जो आया वो लिख दिया, जो फॉलो करना था वो फॉलो कर लिया। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस ये देखेगा आपने फॉलो तो किया, लेकिन अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके जो प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस हैं, दैट इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी एश्योरेंस is a bigger responsibility rather than quality control. In quality control, obviously you need to work in the lab with equipments, come with results. Quality assurance will keep a check on everything which is going on in a lab. As far as even quality control is concerned, that should be strictly as per the protocols. So a bigger responsibility. So now, as you can see, quality control is a smaller thing in a quality system. Quality assurance is a bigger component in quality system. So quality assurance has a major role to play in maintaining, in ensuring that whatever is being done is of course of quality, but you guarantee that quality. That is assurance. And these are some definitions which I have written according to ISO 9000. Quality assurance can be defined as the part of quality management, main management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. मतलब ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ जो भी हमने काम किया है वो सही किया है. So that is a bigger responsibility. Quality control, if you just see, can be defined as the part of quality management focused on fulfilling quality requirements only. ये हो रहा है ना, ये कर रहे हैं ना, आपने प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट लाना है, दैट्स इट. लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस को ये भी देखना है कि जो सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसको उसका आंसर देना है, या फिर कुछ चीजें चेंज करवानी है या कुछ मॉडिफाई कराना है. सो क्वालिटी एश्योरेंस हैज अ बिगर रोल टू प्ले इन द क्वालिटी मैनेजमेंट. क्वालिटी एश्योरेंस अ स्ट्रैटेजी है, मतलब ऑफ प्रिवेंटिंग एनीथिंग अनवांटेड हैपनिंग इन अ सिस्टम, इन अ क्वालिटी सिस्टम. मतलब वो एक स्ट्रैटेजी भी डिवाइस करेगा सो दैट ऐसी कोई चीज हो ही ना. मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना सिस्टम बनाएगा, क्वालिटी सिस्टम बनाएगा कि ये चीजें ना हो. बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. Quality control is basically how to detect, how to find out, how to do the experiment, how to get the results using any instrument. That is the responsibility. See, QC involves verification of output conformance to desired quality levels. जो भी आप काम कर रहे हो वो आप as per the guidance कर रहे हो, as per the requirement कर रहे हो, वो चीज चेक करना है और आपका रिजल्ट देना है. इसके बाद रोल आता है क्वालिटी एश्योरेंस का. So I think this is all I had to say regarding GLP and something regarding SOP, standard operating procedures.
what is QC and what is QA and their role, their significance in GLP for an institute or an organization to be GLP compliance. Quality assurance plays a major role in ensuring that everything happens as per the defined set of criteria, and quality control has a much smaller role to play in quality management. So that is all I wanted to share with you as far as this part of the unit is concerned. And with this, I finish with my part, this unit 2, and I suppose the entire paper now is covered, because I think Archana madam has also completed her part syllabus, and Mishra madam has already completed the other unit 4, I suppose. So if you have anything you wish to ask me, we will be meeting again after your exams to discuss something about your practicals and the Viva. What I'm going to ask you, how we are going to ask you, those things we'll be discussing when we meet after your exams. And hopefully you have already started studying for your exams, which will start from 9th. Anything you want to ask me? Anything? Anyone? Huh? I'll just take your attendance. इंटरनल एग्जाम किसके थ्रू पढ़ता है? क्या कहा हर्ष? इंटरनल एग्जाम तो किसके थ्रू होने वाला है? MS देखो, टीम या MS टीम में देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने ये इसके बारे में बात की जो आपने मेरे से पहले पूछा था, तो मैंने इसमें एक चीज ऑब्जर्व की है कि ये एग्जाम जो है वो हमारे रोलवाला कंप्यूटर सेंटर के थ्रू होगा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं होगा। अब जो तुम पूछ रहे हो कि कौन से प्लेटफॉर्म से होगा, देखो तुमको है ना, तुम्हारा ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो हमारे यहाँ पे है, जिसके थ्रू हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं MS टीम में। उस ईमेल आईडी पे आपके पास ईमेल आएगा, उसमें एक लिंक होगी, ठीक है? बस आपको वो लिंक पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तब आप वहां पहुंच जाओगे, you will reach where you will find your question paper, which is very similar to the Google form which you see. आपने Google form तो देखा है ना, जिसमें एक सवाल होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उसमें क्लिक करना होता है तो वो मार्क हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है ना? उसी तरीके का होगा। सो you need not have to worry about the examination on which platform, MS टीम पे होगा या गूगल मीट में होगा या जूम पे होगा, ये सब कुछ नहीं है। बस आपके पास एक लिंक आएगी और जब आप लिंक पे क्लिक करोगे एक पेज खुलेगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, सवाल होंगे, 35 सवाल आपको मिलेंगे और उसमें से आप कितने में अटेम्प्ट कर सकते हो। हर सवाल का 1 मार्क्स होगा और मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे। सो यही चारों ब्रांचेस में होगा। 35 सवाल होंगे, आपके 30 ही करेक्ट होंगे, जो सही होंगे वही करेक्ट किए जाएंगे, बिकॉज टोटल मार्क्स इज 30। यू आर फ्री टू अटेम्प्ट एनी नंबर, आपको 35 अटेम्प्ट करना है, कर लो। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, so you can attempt all if you want, and you will get ample time to answer that. You will be given about 1 hour. So, and I think if you know the answer, I think if you know 30, I think you can finish in 15-20 minutes also. People have been doing this in the past also. So the things will be, this is how the things will move, and that's it. हाँ हर्ष, कुछ पूछना है अब? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो? सर खुशबू, हाँ पूछो। 30 कलेक्ट होंगे या फिर जो फर्स्ट 30 करेंगे वो? मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने ये कहा
कोई फर्स्ट 30, लास्ट 30, मिडिल 30 नहीं है। आपको जितने अटेम्प्ट करने हो करिए, 35 से ज्यादा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपके मान लो कि 35 के 35 सही हो गए, तो ये मार्क्स तो आपको 30 ही मिलेंगे, 35 नहीं मिल जाएगा। हाँ, 29 अगर सही हुए तो 29 मिलेगा, 31 अगर सही हुए तो 30 मिलेगा, 32 सही हुए तो भी 30 मिलेगा। समझ में आ गया? पहले 30, लास्ट 30, बीच के 30 कुछ नहीं, नो नेगेटिव। अच्छा, मीन सर करेक्ट 30 काउंट हो गए ना? ओनली करेक्ट 30 वुड बी काउंटेड। जो भी करेक्ट होंगे, जितने भी करेक्ट होंगे वो काउंट होंगे। अगर वो काउंट होते होते 30 के ऊपर चले गए तो आपको 30 ही मिलेगा, 30 से ज्यादा तो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर 30 मार्क्स का है और हर सवाल का 1 मार्क्स है, पूछे जाएंगे 35। अब कुछ डाउट है? खुशबू? हाँ, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। आपके दिल में कोई ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि जो भी ऐसा कुछ मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मार्क्स कैसे होंगे, ऐसे ही होगा। और जो 30 मार्क्स का आपको मिलेगा उसको हम आधा कर देंगे इंटरनल के लिए, क्योंकि इंटरनल एग्जाम है, तो आधे में से हम 15 में से दे देंगे। आपको 30 में से 30 मिला तो हम उसको 15 ले लेंगे, 15 में से 15 हुआ, और बाकी का 5 अटेंडेंस हो जाएगा, दूसरा 5 असाइनमेंट हो जाएगा, और तीसरा 5 सेमिनार हो जाएगा, और हो गए 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स इस तरीके से आपके इंटरनल बन जाएंगे, जो हम यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, जो आपकी मार्कशीट में आपको दिखेंगे। ठीक है? हाँ, बोलो बोलो। सर, हमारा कॉल डिपार्टमेंट ओपन होने का कुछ है, मीन्स के अभी ये आ रहा है, ओपन हो रहा है सब? हाँ देखो, सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तुम बिल्कुल सही हो कार्तिक, के खुलने की बात हो रही है, मंडे से खुलना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि खुलेगा, लेकिन अभी तो आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, तो खुलना ना खुलने का कोई अभी एट द मोमेंट वो कुछ नहीं है। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम हो जाएंगे इंटरनल, फिर जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर आपका फाइनल थ्योरी शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर फाइनल प्रैक्टिकल का एग्जाम होने लगेगा, और बीच में आपका असाइनमेंट और सेमिनार भी चलेगा। तो ऐसा है कि ठीक है, खुल जाएगा, आप आ भी सकते हो। लेकिन देखो, ऐसा है कि 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखिए, यहाँ पे आने तो आप आ जाओ, लेकिन आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉस्टल चाहिए। तो यहाँ आने के लिए आपके पास पहले एक प्रॉपर हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए। डिपार्टमेंट में तो आप आ ही सकते हो, आज भी आ सकते हो, आ जाओ, आज भी आ जाओ। लेकिन आप पूछोगे सर रात को रहूं कहाँ, तो वो तो अभी इट इज अ क्वेश्चन मार्क एज ऑफ नाउ, बिकॉज देर आर नॉट ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स हु विल बी स्टेइंग इन द हॉस्टल। ये 250 स्टूडेंट्स में से आपके GIHP में से आधे स्टूडेंट तो हॉस्टल वाले हैं। तो अगर हम आपको यहाँ बुला भी लेते हैं तो पहले हॉस्टल तैयार होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सब लोग यहाँ पे साथ में नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आधों का हम ऑफलाइन ले रहे हैं और बाद में वही चीज को हम ऑनलाइन ले रहे हैं आधों के लिए जो यहाँ नहीं आ सकते। कितने सारे लोग कहाँ से दूर दूर से हैं, जो मुझे पता चला है ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ हैं तुम लोग। अब वो लोग कैसे आएंगे, मतलब कैसे लिया जाएगा? अभी क्या है कि जैसे जैसे समय जाएगा ना, हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करने हैं। अब आप ये समझो कि जो हमारे पास जो कैपेसिटी है, अभी कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, वो हम ऑफ कोर्स GIA अलग और HPP अलग, तो हम सबको एक समय में कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला जो बात आई तो उसमें तो हम आधे से भी कम 1/3 को ही बुला सकते हैं। अगर हम 1/3 को बुलाते हैं तो ये तो ऐसा हो गया कि एक लेक्चर 1/3 को पहले बुला के हम बता देंगे, फिर दूसरे वाले 1/3 को बुलाएंगे, फिर तीसरे दिन तीसरा वाला को बुलाएंगे, तो जो पहला वाला था वो अब चौथे दिन आएगा। ये थ्योरी में हो गया, फिर यही प्रैक्टिकल में होगा। कार्तिक जी तुम समझ रहे हो ना ये सब चीजें मैं जो आपको समझा रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये चीजें ऐसी हैं कि अब आपको अगर आना भी पड़ेगा तो इन टर्म्स आना पड़ेगा। कार्तिक जी अगर आप आज आए ना तो आप कल नहीं आ सकते, अब आपको तो 3 दिन 4 दिन बाद ही आना है इधर, क्योंकि जब स्टैगरिंग होगा, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे तो हमको सबको साथ में तो बुला ही नहीं सकते। यही नंबर अगर 50 होता टोटल तो हम शायद सबको केटर कर लेते। अब हॉस्टल में भी अब जो रूम में रखेंगे, अगर जहां 3 बच्चे रहते थे वहां 2 को रखा जाएगा। अब जब 2 को रखा जाएगा तो तीसरा कहां जाएगा? ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमको एड्रेस भी करना है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब वो बच्चा तो आ ही जाएगा कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो पढ़ना है। अब उस चीज का सोल्यूशन तो हमारे पास है नहीं। सो ये इतने सारे इश्यूज हैं जो कि रियलिटी है। हम कह सकते हैं कि भाई आ जाओ, लेकिन देयर आर सो मेनी सच इश्यूज। आपको अभी जितने भी हॉस्टल्स हैं उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा पहले से। एक बच्चा भी आते हैं, 2 बच्चे भी आते हैं तो उसको सैनिटाइज पूरा करना होगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स की कंसेंट भी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो विथ उनकी परमिशन से आ रहे हो, ये परमिशन भी चाहिए होगी। बिकॉज थिंग्स आर नॉट, they are getting better and better every day, no doubt, but there is no complete clarity in the things which are happening. ये आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरीके से मैनेज होगा विद फिजिकल डिस्टेंसिंग। एवरीथिंग इज लिमिटेड। हाँ यस सर, दैट्स व्हाई आई क्वेश्चन, बिकॉज़ मैं भी वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ। अगर अचानक से बुला लिया तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? दैट्स व्हाई आई आस्क। यस, बिल्कुल सही बात है। जो तुम्हारा कंसर्न है ये सब हम जानते हैं। सी ऐसा नहीं है हमको पता नहीं है, हमको भी मालूम है कि स्टूडेंट्स के कितने कंसर्न्स होंगे। उनको यहाँ लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो यहाँ लोकल हैं वो तो कभी भी आ सकते हो, मिल लो, और जो लोकल हैं उनको कभी हमसे मिलना हो तो हमसे मिल सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन सबके सब एक ही समय में आना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्टल वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आना और रहना, मतलब किस तरीके से रहना, फिर मेस खुलना, फिर मेस में खाने के समय एक उससे बैठना, फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो भी देखना। तुम भी समझते हो कि मेस में किस तरीके से वो होता है। अभी 25 लोग घुस गए अंदर, 30 लोग घुस गए एक समय में, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, तब क्या होगा? तो फूड भी तो जरूरी है, तो उसकी भी सुविधा पूरी होनी चाहिए, वो भी फंक्शनल होने चाहिए। रूम मैंने तुमको दे दिया लेकिन खाना नहीं दिया तो क्या होगा? तुम कहाँ जाते रहोगे? वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं कार्तिक? यस सर, यस। हाँ, ये सारे सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसीलिए क्या है कि वी आर नॉट गेटिंग अ क्लियर पिक्चर एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज व्हाई वी आर जस्ट बाइंग टाइम कि जैसे जैसे कुछ टाइम हो और भी अच्छा हो जाए और जल्दी से हो जाए और कुछ हमें जो गाइडलाइंस मिल जाए तो हम आप लोगों को फिजिकली यहाँ देखें। सी उसी में ही मजा है, उसी में ही एक इंटरेस्ट भी होता है, उसी में एक रैपो डेवलप होता है। और ऐसे में हमें भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस, यू ऑल्सो डोंट हैव एनी चॉइस।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग यहाँ साथ में आए और बैठें और रहें और हॉस्टल और सब, उसमें तो आई स्टिल फील के इट विल टेक अनदर 20-30 डेज, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तो। तब तक एग्जाम ही चलते रहेंगे आपके, क्योंकि अब जो एग्जाम का सिलसिला शुरू होगा वो फरवरी एंड तक चलेगा, या मार्च फर्स्ट वीक में भी चला जाए, सब चीज खत्म होते होते, वाइवा वाइवा होते, प्रैक्टिकल सब होते। सो ये चीज है और ये स्टेटस है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, so if you have no further things to ask, can we end the meeting? Yes. Okay. Yes, Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you everyone. It was real pleasure talking to you and interacting with you during the course of our interaction through lectures. So once again, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सर सर